So once again we are here, and as we all are the teachers, so our main focus or main purpose is just to transfer our knowledge, skill, attitude, whatever experience we have gained in our life, we need to transfer it to our students. And for this process, to achieve our goal, we use a different methodology so that each and every student can correlate with us, can understand what we want to make them know. And as we all are teaching the different subjects, especially we are the science teachers, we are designed to transfer the knowledge to the students. And in this process, whenever we are teaching, we adopt different type of methods or methodology to transfer the different chapters, which either belongs to the physics, biology or chemistry, whatever it is. So in this, without going to talk much more, we are going to know that what kind of the different methodology we can adopt to teach, to make them known, to understand the different topics or the science chapter. In the last session, I had discussed about the lecture method. But today, once again, we are going to talk about the next methodology. Methodology means what? The way through which we transfer our knowledge. The way of transferring the knowledge to the students is called the simple methodology. The first methodology which we are going to talk about and which is widely used by ours, that is the project-based learning. A method which is student-centric. Why we need to shift from the lecture method towards the student-centric method? Because in the 21st century skills, we are known that a student must not only possess the knowledge, but he should be skilled to face the challenges of the life, to must be able to face the failures, and then may be ready to move ahead, could not stop there, could not get depressed. In the present era, we are watching that students or most of the people are suffering from a lot of emotional problems. हम बच्चों को सिर्फ और सिर्फ सफलता के लिए नहीं बता सकते हैं. We have to make them ready to face the drawbacks of the life also. Whenever you are putting your 100% effort, it is not necessary that every time you are getting the 100% feedback positively also from the life. So once you get failed, what will you do? Once you get challenges, what you will do? You will skip? Not at all. So in this process, we are going to talk about the project-based learning, a teaching learning approach that engages learners in the complex activities. अभी के समय में जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हम लोग फेस करते हैं क्लास में, वो यही होता है कि हम बता रहे होते हैं और बच्चे सुन नहीं रहे होते हैं. आंखें खुली होती हैं, दिमाग बंद होते हैं. कैसे मोटिवेट करें पढ़ाने को? क्योंकि हमें अपने गोल को भी अचीव करना है और एकेडमिक रिजल्ट को भी अच्छा करना है. आपको उसे पढ़ने के लेवल पे लाना होगा. कैसे इंटरेस्ट क्रिएट करें? जब वो कोई काम खुद से करेंगे, जब वो पढ़ने को पढ़ना नहीं एक एक्टिविटी और गेम के रूप में लेंगे, तो जाकर के वो इंटरेस्टेड होंगे. सो इन दिस प्रोसेस आई थिंक प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग इज गोइंग टू हेल्प अस अ लॉट. इसमें हम क्या करते हैं, एक ऐसा टीचिंग लर्निंग अप्रोच जिसमें स्टूडेंट्स एंगेज रहते हैं. हम सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं किसी चैप्टर से जुड़ा हुआ प्रॉब्लम को, एक सिचुएशन को, एक केस को फाइंड आउट करते हैं और उसे स्टूडेंट्स के सामने रखते हैं. वी ग्रुप द स्टूडेंट्स, हम स्टूडेंट्स के ग्रुप बना लेते हैं और उनको एक केसेस प्रोवाइड करते हैं, एक सिचुएशन प्रोवाइड करते हैं, एक प्रॉब्लम देते हैं, एक नीड देते हैं. उस नीड को वो सोचना शुरू करते हैं, आपस में डिस्कस करना शुरू करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं और इन्वेस्टिगेट करने के बाद वो उसकी प्लानिंग करते हैं. हाउ टू गेट द रिजल्ट, हमें इसे कैसे करना है, क्या करना है. तो इस पूरे प्रोसेस में स्टूडेंट जो होता है वो पूरे के पूरे आपके उस नीड पे, उस प्रॉब्लम पे फोकस्ड होता है. अगर वो बात भी कर रहा है आपस में, तो वो उसी टॉपिक को लेके बात कर रहे होते हैं. सो योर गोल टू मेक देम लर्न, to engage them is achieved.
रिक्वायर सेवरल स्टेप्स। अभी तुरंत मैंने कहा कि जब आप प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग के लिए आगे बढ़ते हैं तो इसमें बहुत सारे स्टेप्स हैं। सबसे पहले आपको टॉपिक चुनना होता है, टॉपिक से जुड़ा हुआ प्रॉब्लम देखना होता है कि ऐसा कौन सा टॉपिक, ऐसा कौन सा प्रॉब्लम या नीड हम उनको दें जिससे कि उनकी क्यूरियोसिटी बनी रहे और उनकी जानकारी भी हो। कोई एक अननोइंगली चीज़ हम नहीं दे सकते हैं। ऐसे टॉपिक को सिलेक्ट करें जिसका प्रीवियस नॉलेज उनके पास थोड़ा बहुत हो, एक्सपीरियंस हो और जिसको वो रियल वर्ल्ड में अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं। दैट मस्ट बी सो लॉन्गर पीरियड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। जब ऐसा कार्य, जब आप कोई प्रोजेक्ट को चूज करेंगे तो आपको देखना होगा कि इट मस्ट डेवलप द स्किल एंड इट मस्ट गिव द एटीट्यूड टू द स्टूडेंट ऑल्सो। ये उसके स्किल को भी बढ़ाने वाला होना चाहिए और उसके लाइफ में एडॉप्टेड होना चाहिए। दैट मीन्स the need or the problem must be real world concern and that is going to increase the critical thinking। वो उनके क्रिएटिविटी को इंक्रीज करेगा, कोलैबोरेशन को बढ़ाएगा। तो आपको एक लंबा समय, लॉन्गर टाइम पीरियड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन देना होगा, एक समय देना होगा सोचने के लिए। आज प्रोजेक्ट दिया, 2 दिन में खत्म करके दे दो तो कहाँ से देगा बच्चा? ऑब्वियसली ही इज गोइंग टू चीट। उसे चीटिंग के लिए आपको नहीं बढ़ाना है, उसको प्रॉपर टाइम दीजिए। एक प्रॉपर टाइम मस्ट बी गिवन। एंड कोऑपरेटिव ग्रुप लर्निंग, जब बच्चे एक साथ ग्रुप में काम करेंगे तो ऑफ कोर्स कुछ बच्चे की कुछ पॉजिटिविटी होती है, कोई कलेक्शन में होता है, किसी कनेक्शंस अच्छे होते हैं, किसी का पर्सनल स्किल बहुत अच्छा, कोई लीडर बहुत अच्छा, कोई ड्राफ्टिंग बहुत बढ़िया करता है। तो जब बच्चे ग्रुप में काम करते हैं तो वो एक दूसरे के साथ बहुत सारी चीजें सीखते भी हैं और एक दूसरे को कोऑपरेट भी करते हैं। फोकस ऑन सेंट्रल कॉन्सेप्ट्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ अ डिसिप्लिन। व्हाटएवर द सब्जेक्ट, व्हाटएवर द टॉपिक यू हैड सेलेक्टेड, द टॉपिक मस्ट बी रिलेटेड टू दैट। फॉर एग्जाम्पल, जब हम लोग एडोलसेंस चैप्टर पढ़ाते हैं क्लास 8 में तो हमारे पास उस पूरे सेगमेंट में बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं। एडोलसेंस एक ऐसा टाइम है जिसकी वजह से आज हम लोग अपने क्लास में सबसे ज़्यादा परेशानी झेलते हैं। एक बच्चा जो एक दूसरे को देख के अट्रैक्टेड होता है, अच्छे दिखने की कोशिश करने लगता है, उसको सेक्सुअल हार्मोन्स के बारे में जानकारी चाहिए, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में। रिप्रोडक्शन चैप्टर का नाम आते ही क्लास का स्ट्रेंथ बढ़ जाता है, फुल अटेंशन आ जाता है। तो आपको उसको बताना होता है कि आप ये उतना ही नेचुरल प्रोसेस है जैसे आपके बाकी सारे प्रोसेसेस बॉडी के पढ़े हैं आपने। अगर कोई व्यक्ति रिप्रोडक्शन नहीं कर पाता है तो उसकी लाइफ जीरो नहीं हो जाती है। यू हैव टू मेक देम नोन। जब हम लोग सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ाते हैं तो हमें बताना होता है कि व्हाई फीटिसाइड्स आर नॉट गुड फॉर द सोसाइटी। अगर आपका रेशियो मेल फीमेल का अनबैलेंस होता है तो हाउ इट इज गोइंग टू हैम्पर योर लाइफ इन द लॉन्गर रेस। यू हैव टू मेक देम नोन। तो आप इसे प्रोजेक्ट बेसिस पे दे सकते हैं। हम कहते हैं, इसी चैप्टर में हमारा एक टॉपिक है, अगर आपको याद होगा, से नो टू ड्रग्स। और अगर हम सभी लोग एक दूसरे के साथ ऑनेस्टी नीचे से पढ़ के आए हैं तो ईमानदारी से अगर कहें तो हमारे यहाँ सोसाइटी में जब भी शादी ब्याह होता है तो सारे सभ्य समाज के लोगों का एक छोटा कॉर्नर कहीं साइड में लगा होता है जहाँ लोग अल्कोहल ले रहे होते हैं। और ये मेल सोसाइटी में वाइडली एक्सेप्टेड है कि यार थोड़ा बहुत कभी कभार चलता है। और अब ये फीमेल्स में भी होता जा रहा है। अभी तो ये इक्वालिटी की वजह से ये जो अभी चल रहा है, हम भी उनके बराबर हैं, उसके चक्कर में आप क्या अडॉप्ट कर रहे हैं। तो आप जब बच्चों को प्रोजेक्ट देंगे तो वो सर्वे करता है, डाटा कलेक्शन करेगा और तब वो एनालाइज करेगा। वो मेरी कही बात क्यों माने? Why he has to accept all the thinkings of a teacher? He has to accept by his own experience. अगर कोई चीज गलत है या सही है, he has to accept by his working by doing, learning by doing. तो प्रोजेक्ट मेथड इस मामले में हमें बहुत हेल्प करता है। Focuses on central concepts and principles of discipline. Involves a student in a problem solving and other meaningful tasks. अगर हम एडोलसेंस जब हम लोग पढ़ा रहे होते हैं तो ये बहुत सेंसिटिव चैप्टर हमारे लिए हो जाता है। जिस समय हम इसकी बात कर रहे होते हैं उस समय हम बच्चों से ये बात करते हैं कि अभी के बच्चे बोलते हैं मैडम हम लोग रिलेशनशिप में हैं। अब उन्हें कैसे समझाया जाए कि रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है, लॉन्गर रेस में ये क्या होगा। अब अगर आप इस उम्र में रखते हैं और इसके बाद अगर आपका ब्रेकअप होता है तो लड़के और लड़की की मानसिकता, उनके मोरल इमोशनल स्टेटस पे क्या असर पड़ता है एंड हाउ इट इज गोइंग टू हैम्पर देयर कैरियर, their behavior, their trust, reliability, ये सब essential चीजों को कैसे डिस्टर्ब कर देगा, they are not known. तो whenever we are watching the examples, जब आप उनको प्रोजेक्ट देंगे, जो जुड़ा हुआ टॉपिक देंगे तो इसके बारे में वो इन्वेस्टिगेट करते हैं तो बहुत सारी चीजें जो वो नहीं ध्यान देते हैं, जिसको वो इग्नोर कर देते हैं, उन चीजों को वो फिर से एक बार सोचना शुरू करते हैं एंड 100% इज गोइंग टू हेल्प देम।
That was the various steps I had said, identifying a problem and need. जब भी आप प्रोजेक्ट देंगे तो एक टॉपिक देंगे, तो उस टॉपिक से जुड़ा हुआ इन्वेस्टिगेशन ग्रुप के बच्चे सारे करेंगे, क्या दिया गया, क्या क्या करना है इसमें, क्या करना है, कैसे करना है, प्लानिंग टेक्नोलॉजी डिवाइसेस, हम इसे कैसे कहाँ से इसकी कैसे कैसे स्टेप वाइज इसके इन्फॉर्मेशन को गैदर करेंगे, कंस्ट्रक्टिंग एंड ट्रबल शूटिंग। जब वो डाटा कलेक्शन कर लेंगे तो उनके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या होगा और उस प्रॉब्लम का एग्जैक्ट सॉल्यूशन क्या है, दे विल फाइंड आउट। और तब वो इवैल्यूएट करते हैं हमने क्या काम किया, कैसे कहाँ से सर्वे किया, क्या रेफरेंस हमने यूज़ किए हैं, उन सभी को इवैल्यूएट करते हैं। और इस तरह से जब वो एक प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं तो हमें अपने पर्पस का रिजल्ट मिलता है। प्रोजेक्ट विथ बेस्ड मेथड का 5 बेनिफिट्स क्या है? रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम, जब आप प्रोजेक्ट देते हैं तो ये अक्सर ये उनके रियल वर्ल्ड से जुड़ा हुआ है, दैट इज गोइंग टू हेल्प देयर स्किल्स। पर्सनल कनेक्शंस, व्हेनेवर द स्टूडेंट्स आर वर्किंग इन अ ग्रुप दे गेट कनेक्टेड विथ वन अनदर, दे स्टार्ट्स रिस्पेक्टिंग वन अनदर, दे स्टार्ट्स कोलैबोरेटिंग विथ वन अनदर। स्टूडेंट एंगेजमेंट जो हमें चाहिए कि सारे बच्चे टॉपिक में एंगेज्ड हो, उनका दिमाग इधर उधर ना जाए, स्टूडेंट सेंट्रिक हो और कॉन्टेक्स्ट सेंट्रिक हो, दैट इज गेन्ड। क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस, दे स्टार्ट थिंकिंग, लॉजिकल रीजनिंग, लॉजिकल थिंकिंग, रीजनिंग शुरू हो जाता है, ये ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। A lot of opinions they get, a lot of ideas they got, and they start working on it, they start thinking on it. तो ये उनके क्रिटिकल थिंकिंग अप्रोच को बढ़ाता है। एंड स्टूडेंट सेंटर्ड, मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन, ये मेथड हमारा स्टूडेंट सेंटर्ड है। अब प्रोजेक्ट बेस्ड मेथड के लिए आप क्या टूल्स यूज़ कर सकते हैं, क्या टेक्निक यूज़ करते हैं? इसके वेरियस मेथड आप केस स्टडीज़ बच्चों को दे सकते हैं, रोल प्ले दे सकते हैं, बुक्स के द्वारा आप उनको हेल्प कर सकते हैं कि हाँ ये टॉपिक है, ये एक्टिविटी है, इसको करो। फैमिलीज, आपके घर में फैमिलीज में कोई प्रॉब्लम दिख रहा है, बच्चे कई बार हम लोगों से शेयर करते हैं, मैम ऐसा हुआ वैसा हुआ। जैसे हम लोग जब पढ़ा रहे होते रिप्रोडक्शन, तो बच्चे अक्सर ही हमसे पूछते हैं कि मैम कैंसर होता है तो कैसे होता है, क्या इसका रेमेडीज है। तो इनके रियल वर्ल्ड के प्रॉब्लम्स को, फैमिली प्रॉब्लम्स को एप्स के द्वारा या पिक्चर्स के द्वारा आप उनको डिफरेंट प्रोजेक्ट्स दे सकते हैं, जिससे कि आपका अपना टॉपिक एक्सप्लेन हो। नेक्स्ट वन, कभी कभी हम देखते हैं क्लास में, जब हम ग्रुप में किसी बच्चों को कोई प्रोजेक्ट देते हैं तो बच्चों के पास स्कूल में समय कुछ कम होता है, क्योंकि इतने पीरियड्स होते हैं कि उसमें वो हम सारे सब्जेक्ट चलता है। तो जब ग्रुप में देते हैं तो कुछ बच्चे आपस में आज कल क्या करें कि व्हाट्सएप ग्रुप बना लेते हैं। हाँ। और उसके बारे में ना टीचर को कोई पता होता है ना उसके पेरेंट्स को पता है। तो वहाँ पर पेरेंट्स का क्या रोल होना चाहिए जो हम प्रोजेक्ट दिए हैं, और उसमें पेरेंट्स का क्या सपोर्ट होना चाहिए, और टीचर के लिए क्या इंस्ट्रक्शन होना चाहिए बच्चों के लिए, यस ऑफ कोर्स, ताकि उसको अच्छे से बना सके। उसमें क्या होता है कि अगर गर्ल्स ही चारों हैं या चारों बॉयज़ का ग्रुप है तो उसको स्मूथ अच्छे से घर पर कैसे करें, क्योंकि चारों 4 जगह का है। सही है। तो ऐसा प्रोजेक्ट ही हम चयन करें जिसको कि वो स्कूल में ही कर सके मैक्सिमम। अगर नहीं भी कर पाता है तो ऐसे बच्चों को सिलेक्ट करें जो बच्चे की किसी तरह का अनफेयर काम नहीं करे। और पेरेंट्स आ जाते। बिल्कुल बिल्कुल, आप एकदम सही कह रहे हैं सर। तो यहाँ पे देखिए, द रोल ऑफ टीचर प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। जब भी हम प्रोजेक्ट देते हैं तो टीचर्स का रोल गाइडिंग का आ जाता है। आप उसको टॉपिक के बारे में गाइड करेंगे, आप उनको रेफरेंस बुक्स कहाँ से मिलेंगे उसकी गाइडलाइन करेंगे, आप एक रूब्रिक्स बनाएंगे, जो प्रोजेक्ट उन्होंने बनाया है आप उसको एक्सेस कैसे करेंगे, इवैल्यूएट कैसे करेंगे। आपको एक रूब्रिक्स बनाना होगा, आपको बच्चों को एक पर्टिकुलर टाइम असाइनमेंट करना होगा कि हाँ इसके लिए आपको 4 वीक्स दिए जाते हैं या 2 वीक्स दिए जाते हैं, और इस तरह से आप उनको एक परफेक्ट टाइम दीजिए। उसके बाद उनको ये भी असाइन कीजिए कि भाई इसके 3 आपके माइलस्टोन्स होंगे। पहला माइलस्टोन होगा कि आप प्रोजेक्ट बना के रिप्रेजेंट करेंगे, टीचर को दिखाएंगे। दूसरा ये होगा कि आपने क्या क्या रेफरेंस, क्या क्या मेथड्स कलेक्शन के लिए यूज़ किए हैं, आप उसको क्लास में बताएंगे। और तीसरा है कि ग्रुप के सारे मेंबर्स क्लास में इसको सारे बच्चों को रिप्रेजेंट करेंगे। तो जब आप टाइम बाउंडेशन देंगे, इवैल्यूएशन के रूब्रिक्स बना लेंगे, बच्चों को प्रॉपर गाइडलाइन देंगे रेफरेंस के लिए, तो यू आर गोइंग टू गेट द अचीव योर गोल। सिर्फ हमें ऐसा नहीं कि प्रोजेक्ट बना के लाना है जी, बना करके फाइल में जमा कर देना। दिस इज नॉट डन, इट इज नॉट गोइंग टू बी डन बाय अस, इट शुड बी अवॉइडेड। हमें एक पतली फ्लैप नहीं चाहिए, वो तो कहीं से नेट से सारा पेमेंट पिक्चर डाउनलोड करके ला के दे दिए। This is not going to achieve the aim of critical thinking, collaboration. ये तो चीटिंग पढ़ा रहा है।
हमारे काम की चीटिंग हो गई, उनके काम की चीटिंग हो गई। आपको उन्हें काम करने के थोड़ा ही करे, लिटिल बिट ही करे, बट दे हैव टू गेट इंफॉर्मेशन बाय देयर ओन। उन्हें अपने आसपास के लोगों से बात करना होगा, आपको इसे बढ़ाने का वक्त देना होगा। 2 दिन में कोई काम नहीं होने वाला, यू हैव टू डिसाइड। और इसलिए आज का ये टॉपिक मैंने चुना है। अभी हम लोग इसके बाद जो टास्क आपको देंगे वो हमारे इसी काम को करने के लिए, क्यों मैंने इसे सिलेक्ट किया है ये लास्ट में आपको बताऊंगी। नेक्स्ट हम लोग जो बात करने जा रहे हैं मेथोडोलॉजी, दैट इज द फ्लिप्ड लर्निंग। व्हाट इज फ्लिप्ड लर्निंग? दिस इज जस्ट द रिवर्स ऑफ द ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड। हम क्लास में आए, खड़े हुए और बच्चों को पढ़ाया, वट एवर द मेथड आई हैड यूज्ड। यहाँ क्या हुआ, बच्चा एक बार मेरे लेक्चर को सुना, जिसको सुनना था वो सुना, जिसको नहीं सुनना था वो नहीं सुना, जो एब्सेंट है दैट हैड लॉस्ट। सम ऑफ द स्टूडेंट्स मे बी स्लो लर्नर्स, ये तो हो सकता है ना। दिस इज नॉट नेसेसरी दैट ईच एंड एवरीवन हैज अचीव्ड और रिसीव्ड माय वर्ड्स प्रॉपरली। हर व्यक्ति मेरी बात को सुन पाया होगा, हर एक स्टूडेंट मेरी बात को सुन पाया होगा, इट्स नॉट नेसेसरी। तो ऐसे में क्या हुआ कि देयर इज द नीड ऑफ फ्लिप्ड क्लासरूम और फ्लिप्ड लर्निंग मेथड। ये ट्रेडिशनल मेथड का जस्ट अपोजिट है। इसमें हम क्या कर सकते हैं, हम अपने लेक्चर्स का वीडियो बना सकते हैं, उन वीडियोस को बच्चों को सेंड कर सकते हैं। दे जस्ट गो एट होम एंड वॉच द वीडियोस वंस, ट्वाइस, थ्राइस, व्हाटएवर द टाइम्स दे वांट टू सी, until unless they understood the topic। जब तक वो टॉपिक को समझते नहीं है तो वो घर पे उसको पढ़ते हैं, उसके द्वारा पढ़ते हैं। जैसे हमारे यहाँ आजकल बच्चे घर पे यूट्यूब के माध्यम से या डिफरेंट कोचिंग सेंटर्स के लेक्चर्स को सुनते हैं, वो बार बार उसको देखता है और उसको समझता है। तो फ्लिप्ड लर्निंग मेथड में हम यही काम करेंगे, हम अपने टीचिंग मेथड को जस्ट रिवर्स कर देते हैं। इसे हम मास कम्युनिकेशन से कहीं ज़्यादा इंडिविजुअल सेंट्रिक मेथड पे प्रोवाइड करते हैं। हम अपने वीडियोस को बनाएंगे, बच्चों को सेंड कर दिए, बच्चे उसे घर पे देखेंगे, घर पे देख करके उससे उस बात को समझेंगे। वट एवर द टॉपिक वी हैव सेलेक्टेड दे अंडरस्टूड, एंड नॉट ओनली अंडरस्टूड, दे फ्रेम द क्वेश्चन और वर्कशीट। अब जो लोगों ने समझा हमारे टॉपिक से, उससे जुड़ा हुआ एक टास्क एक प्रिपेयर करेंगे। यानी कि जो होमवर्क हम उन्हें घर पे करने के लिए देते थे, वो होमवर्क वो प्रिपेयर करके वर्कशीट के रूप में या फिर आपके क्वेश्चनर के रूप में लेकर के आएंगे, एंड अगेन दे आर गोइंग टू डिस्कस दिस शीट इन द क्लासरूम। अब जब क्वेश्चनर मेथड से हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं तो अक्सर मैंने देखा है कि जो बच्चे नहीं भी सुनने वाले होते हैं वो सुनना शुरू करते हैं। क्या क्वेश्चन है, कोई बच्चा अगर पूछ रहा है तो दोस्त पूछ रहा है, सुन रहा है, क्या पूछा गया, अच्छा ये कैसे हुआ। अभी यहाँ पे फायदा कैसे हमें मिलता है, दोज स्टूडेंट्स विच आर एब्सेंट और दोज आर स्लो लर्नर्स, दे कुड अंडरस्टैंड द टॉपिक प्रॉपरली। और जब क्लासरूम में डिस्कशन होता है तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स get interacted and remain attentive in the classroom। तो ये फ्लिप्ड क्लासरूम हमारे लिए उस मायने में बहुत बेनिफिशियल होता है। जैसे अगर क्लास 9 में, अभी चूंकि 8 फिनिश हो चुका है, 9 चल रहा था, इसलिए उसके एग्जाम्पल दे रही हूँ। 9 में चैप्टर है हमारा एक स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम को पढ़ाने से पहले हम बच्चों को मैटर पढ़ा चुके होते हैं, मैटर इज प्योर और इम्प्योर ये पढ़ा चुके होते हैं, मैटर व्हाट इज मेड अप ऑफ ये पढ़ा चुके होते हैं, और अल्टीमेटली हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम पे आ रहे हैं, जिसके पहले वो डाल्टन की थ्योरी पोस्टुलेट्स पढ़ चुका है। अब यहाँ से हम शुरू करते हैं कि भाई तुमको तो पढ़ाए हैं, हम तुमने पढ़ा है डाल्टन के बारे में कि डाल्टन ने कहा था कि एटम इंडिविजिबल है। तो फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की जर्नी कैसे शुरू हुई, कहाँ से शुरू हुई। दैट मीन्स यू आर ड्रैगिंग द स्टूडेंट्स टू द टॉपिक। अब हम उसके प्रायर इंफॉर्मेशन के आधार पे, एक्सपीरियंस के आधार पे उसको ड्रैग कर रहे हैं। मैंने कहा तुम पढ़ के आना, यू हैव टू एक्सप्लेन द टॉपिक इन द क्लासरूम। आप आएंगे, एक मुझे आके बताएगा चार्ज पार्टिकल्स के बारे में, एक पूरा रो मुझे बताएगा कि भाई किसने किसने उसके स्ट्रक्चर को डिफाइन किया है, थॉमसन ने किया, रदरफोर्ड ने किया, बोर्स ने किया, क्या किया। 1 by 1 आई एम गोइंग टू कॉल फ्रॉम दिस रो। अगले रो को मैंने कहा कि यू आर गोइंग टू एक्सप्लेन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। लास्ट वाले को मैंने कहा कि भाई आप मुझे आइसोटोप और आइसोबार बताएंगे। ये मेथड मैं अभी यूज कर रही थी। तो ऐसे मेथड में जब मैंने देखा तो बच्चे आ रहे हैं पढ़ के अपना अपना सेगमेंट सब पढ़ के आए, लेकिन अपना ही सेगमेंट पढ़ के आए, दूसरे के टॉपिक को नहीं पढ़ा, उन्हें पढ़ाना है। जब वो यहाँ आके खड़े होते हैं तो दे फाइंड दैट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू स्पीक।
whatever they know, how to frame the sentence, how to deliver my content to others, they failed. Some get सक्सेसफुल, बहुत अच्छे से अपनी बात को कहा और कुछ के लिए बहुत मुश्किल हुई. तो जब वो इस काम को करना शुरू किए तो उनको समझ में आया कि हाँ, टॉपिक पढ़ने में हमें किन किन चीज़ों पर ध्यान देना है, कैसे अपनी बात को कहना है. और तब मैंने उन्हें कहा कि वॉट एवर यू हैव लर्न जस्ट राइट इट डाउन, पेन डाउन. वो लिखना शुरू किए. तो जब ऐसे क्वेश्चन आयर हम लोग करते हैं और जब उनको घर पे असाइन करते हैं, वो क्वेश्चन फ्रेम करके आते हैं, तो जो उनके लैक्यूनास रह जाते हैं, जिन टॉपिक्स को वो कवर अप नहीं कर पाए, देन द रोल ऑफ टीचर्स. तो उन वैलेंसी क्या थी वो नहीं करके आए. वैलेंस सेल किसे कहेंगे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वैलेंस सेल, वैलेंसी, वो भूल गए थे कि हाँ मैम नहीं पढ़ा ये टॉपिक में, तो आपने नहीं कहा, तो यू आर गोइंग टू हेल्प यू. लाइट बंद कर दीजिए. उधर ऑन कर दीजिए, इधर वाला ऑफ कर दीजिए. जी हाँ, वो चुप रहिए. ये ऑफ कर दीजिए, इसको ऑफ कर दीजिए. इसको ऑफ कर दीजिए. नहीं ये सही है वो. हाँ, इसी की बात. क्लासरूम जिसका ट्रेडिशनल मेथड है, लेक्चर हम दे रहे हैं और होमवर्क बच्चा घर पे कर रहा है. यहाँ क्या कर रहा है, बच्चा घर पे पढ़ रहा है और होमवर्क वो क्लास में कर रहा है, क्लासरूम एक्टिविटीज में कर रहा है, जिसमें वो उसको डिस्कस करेगा. बेनिफिट्स, एनहांसेस लर्निंग, लर्निंग मेथड को बढ़ाता है. इंगेजेस स्टूडेंट्स इन द प्रोसेस, एम्फेसाइजेस सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग, बच्चा खुद से पढ़ने लगता है. और आप हम लोग सब जानते हैं कि सेल्फ स्टडी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सिर्फ सुन के पढ़ा नहीं जा सकता, सीखा नहीं जा सकता है. यू हैव टू स्टडी. अनलिमिटेड एक्सेस टू द कंटेंट आप जब वीडियो के रूप में प्रोवाइड करते हैं. मैम कभी कभी क्लासरूम की टीचिंग जो होती है वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है कि अगर उससे हम वीडियो देते हैं घर से और उसी चैप्टर का कोई वीडियो हमने बनाया और घर पर दिए बच्चों को पढ़ने के लिए. लेकिन क्लासरूम टीचिंग में क्या होता है कि इंटरेक्शन होता है बच्चों के साथ. कुछ बच्चे भी हमसे शेयर करते हैं क्वेश्चंस को, कुछ हम भी उनके साथ शेयर करते हैं. हमने देखा 7 में हमारी तो मैम पढ़ाती हैं, तो इनका जो वीडियो आता है वो क्लासरूम से ज़्यादा बढ़िया रहता है. पहली बार मैंने देखा. क्यों बढ़िया रहता है? तो उसको बच्चों ने कहा कि सर अगर हम क्लास में उस समय इंग्लिश का काम पीरियड था, मैथ का पीरियड था, तो कम भी ध्यान दिए, तो घर पर उसको अगर एक बार रिकॉल किए तो हमको अच्छे से समझ में आए. तो ऐसा है कि अगर आप वीडियो भी बनाते हैं और ऐसा वीडियो बनाइए कि जो बच्चों को एकदम हार्ट टचिंग वीडियो हो, उस टॉपिक को टू द पॉइंट बता दे और उसके बाद असाइनमेंट करें तो अच्छे से करते हैं. आज तो मैम का एक दो नहीं बहुत सारी वीडियो हमने देखा है, बहुत बेहतरीन तरीका से उन्होंने बताया. अगर वो नहीं भी हैं तो वीडियो उनका प्रेजेंस को दिखाता है. Sir, this is the clapping for all the teachers. We all are taking the effort. Yes, ma'am. But mobile is not allowed. Mobile is not allowed in the classroom. No, you should not have to make the video in the classroom, ma'am. You should not permit it. You are not permitted to make the video in the classroom. When you have to make the video whenever you are getting the spare time. Then this video must be sent to the students. जैसा हम लोगों ने कोरोना क्लासेस में किया है. But yes, we are facing the problem. But one more thing we know that mobile phones became the breath of our life. Yes. We can't avoid. Oh, everyone have the mobile phones. आजकल एक बायजू क्लास है. हाँ बिल्कुल. और हमारे स्कूल में जो टॉप 10 बच्चे हैं, बायजू PW. हाँ, तो वो बायजू जो चलाता है, तो कुछ पेरेंट्स हैं जो अपने प्रेजेंस में बच्चों को टाइम बना दिए. बिल्कुल सही. अब हम ये नहीं कहते कि डिजिटल युग में आप मत देखिए, हम ऐसा नहीं करते. हम एक सप्ताह के लिए कहीं पटना से बाहर हैं, हम स्कूल नहीं आ रहे हैं, उस एक सप्ताह का अगर कोई वीडियो हमारे पास जब ऑफलाइन क्लास नहीं चल रहा था, ऑनलाइन क्लास चल रहा था, वैसा वीडियो अगर हम देखते हैं उसी चैप्टर का, तो उसको हम समझ सकते हैं. उसके लिए आप अगर पटना से बाहर भी है तो समझ सकते हैं. लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ पेरेंट्स के सामने में पेरेंट्स परमिटेड उस चीज को परमिट करें कि हाँ तुम देख सकते हो इसको. जैसे बैजू क्लास में हम करते हैं वैसे हम इसमें बिल्कुल बिल्कुल सर. बोथ आर द सेम थिंग. वहाँ आपके इंस्टीट्यूशन का नाम डीएवी ना होके बायजू हो गया, हम भेजेंगे तो डीएवी होगा. Here the role of the parents becomes much more important one. Whenever they are providing the digital gadgets to the student, they have to look after also. ये ऐसा नहीं हो सकता कि बच्चे के हाथ में बंदूक दे दिया और आंख बंद करके सो गए.
पेरेंट का रोल ये नहीं हो पाना है. Apart from that, we teachers become accountable to guide the children how to use the gadget in a positive direction. Positive, हर साइड का दो, हर कॉइन का दो साइड होता है, तो it is how we have to guide them. वन मोर एग्जाम्पल आई वुड लाइक टू गिव यू. अभी तो हम लोग जान रहे हैं कि वर्ल्ड में दो जगह बहुत भयानक लड़ाइयाँ चल रही हैं. हाँ. सबके पास न्यूक्लियर वेपन है, बट दे आर नॉट यूजिंग इट. Because they know. अगर they जाना चाहे तो इस लड़ाई को खत्म करने के लिए एक स्टेप काफी है. इधर वाले इधर को दे दे, उधर वाले उधर को न्यूक्लियर बॉम्ब का यूज करे, कहानी खत्म. बट दे आर नॉट यूजिंग इट. सबको पता है व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंसेस. तो बच्चे को भी आपको उस लेवल पे तो लाना ही पड़ेगा. हम जिनको डील कर रहे हैं मिडिल एज के बच्चे, एडोलसेंट पीरियड के बच्चे हैं. सो द रोल ऑफ पेरेंट्स एंड टीचर्स बोथ बिकम्स इंपॉर्टेंट. But only 25 signatures are मैम बच्चों में ये जानकारी होनी चाहिए क्या अच्छा है क्या बुरा. उनका मैम है कि बेटी कॉलेज में पढ़ी, अब पर डे का रिपोर्ट देती है 7 बजे शाम में कि मम्मा हमने ये काम किया. तो ये बच्चों में होना चाहिए कि पेरेंट्स के साथ टचिंग होना चाहिए कि हमने क्या किया. The role of parents बेटी पढ़ी है बाहर, तो वो सब दिन रिपोर्ट देती है शाम को 9 बजे कि मम्मी आज का ये मेरा रूटीन है, क्लास वर्क ये हुआ, ये सभी सब काम की. तो बच्चों में ये डेवलप करना है कि वो चीट नहीं करे पेरेंट्स से, ना चीट करे टीचर से. दोनों के बीच कॉम्बिनेशन लेकिन होना है. एक बात और है सर कि आप जान लीजिए कि बच्चा को हम कितना भी सिखाएंगे वो गलती करेगा. कुछ चीजें वो आपसे छुपा के करेगा और उससे उसकी लर्निंग होगी. अगली बार जब वो काम करना होगा, ही नो व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट विल बी इट्स कॉन्सिक्वेंसेस. वो हर चीज हमारे बोलने से नहीं सीखेगा सर. कुछ चीज वो अपनी जिंदगी के एक्सपीरियंस से भी सीखेगा और हमें इसके लिए रेडी होना होगा. हम सिर्फ साइकिल चला रहा है तो वो गिर जाएगा, इसके डर से साइकिल चलाना सिखाना बंद नहीं कर सकते हैं. Yes, so we have to move the next methodology, that is the experiential learning. Experiential learning, the word is not new to us, right? Yes. Experiential learning is an engaged learning process where students learn by doing and by reflecting on the experience. जैसे कि अक्सर ये बात कही जाती है कि साइकिल चलाना है तो एक बार गिरना ही पड़ेगा. जब तक घुटना फूटेगा नहीं, साइकिल चलाना नहीं सीखोगे. तो ये क्या है? दिस इज लर्निंग बाय डूइंग. वी लर्न बाय आवर एक्सपीरियंस. सो एक्सपीरियंशियल लर्निंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एंड इट शुड बी अडॉप्टेड बाय द टीचर्स एंड इट शुड बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथोडोलॉजी. एक्सपीरियंशियल लर्निंग में हम क्या करते हैं? सबसे पहले एक कंडीशन को चूज करेंगे, चैप्टर को चूज करेंगे, चैप्टर को चूज करके उसके टॉपिक को चूज करेंगे, कौन सा हमें देना है, तो हम इसे अप्लाई कर रहे हैं. अप्लाई करने के बाद बच्चा अपने पहले के एक्सपीरियंस के आधार पर, जैसे कि फ्रिक्शन, जब हम लोग चैप्टर फ्रिक्शन पढ़ा रहे हैं या फिर हम लोग रिफ्रैक्शन पढ़ाएं क्लास 8 में, हमें बच्चे को बताना था कि जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगा, इट हैज टू बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल. कैसे समझाएं? क्लास में जाके बच्चे को बोल दिया तो विजुअलाइज, जब तक चीजों का विजुअलाइज नहीं करते यू आर नॉट गोइंग टू रिमेंबर इट. तो बच्चे को बताना कैसे शुरू किया भाई? बोले कि भाई ऐसा करो कि 5 नंबर गेट से तुम्हारी रेस लगाई स्कूल तक, जो आ गया उसको 1 डे ट्रिप है पूरी के लिए. सब बच्चा खुश, यस मैम वी आर रेडी. हम लोग ठीक है आ जाओ. 5 नंबर गेट से बच्चे रेस लगा रहे हैं, मैंने कहा ट्रैफिक रोक दी हम लोगों ने. लेकिन जैसे ही बच्चे आप दौड़ करके आ रहे हैं यहाँ पे एयरपोर्ट के पास, वहां पे धरना प्रदर्शन चल रहा है, लोग बैठे हुए हैं. अब आपका रनिंग का जो स्पीड था व्हाट विल बी? डिक्रीज्ड. अब कैसे दौड़ोगे? सीधा दौड़ोगे कि कट निकाल के दौड़ोगे? तो मैम कट निकाल के दौड़ेंगे. क्यों? डेंसर मीडियम. आप जब डेंसर मीडियम भीड़ में आए, आपका जो पाथ था इट गेट चेंज्ड. तो आपका लाइट के साथ भी सेम काम हो रहा है. जब रेयर मीडियम से डेंसर ऑप्टिकल मीडियम में जाता है तो इट बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ इसको झुकना पड़ता है. और जैसे ही इसको फ्री रास्ता मिला, रेयर मीडियम मिला, इट स्टार्ट्स रनिंग टू इट्स पाथ. ये नॉर्मल को भूल गया और भागा अपने लक्ष्य की ओर. द वे यू आर यूजिंग, यू आर शेयरिंग द एक्सपीरियंस. आप बच्चे को उसके एक्सपीरियंस डेली यूज पे, डेली एक्टिविटीज से कनेक्ट करके बताते हैं. We can give another example related to this, madam, related to radar and denser medium. In comparison of classroom, students when we go in the ground for playing game, so in comparison to classroom, ground is an radar medium and classroom is a denser medium. So when they move from classroom, so they move here and there.
That means from denser medium they travel in rarer medium. So they bends away from the normal. Or when they will come back in the classroom in comparison to ground, classroom is a denser medium. When he went in the classroom, so they went towards their seats. So that's what that means. They went towards the normal. So we can explain by this. थैंक यू सर, बहुत अच्छे। हम सभी लोगों के पास इस उम्र तक आते थे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं और हम सभी लोग अपने चैप्टर के टॉपिक से कहीं ना कहीं उन सबको जोड़ के जब बच्चों को विजुअलाइज कराते हैं या उनको विजुअलाइज करने देते हैं, वी असाइन सम टास्क अगेन आइदर बाय द प्रोजेक्ट मेथड या फिर हम उन्हें इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग किसी भी चीज़ के लिए जब केस बेस्ड देते हैं, रोल देते हैं, तो हम उनको रिलेट करते हैं, हम उनको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं, जस्ट यूज your experience whatever you had gained and how to move to the next। एक ही सेल चैप्टर को वो 9 में भी पढ़ता है, 7 में भी पढ़ता है, 8 में भी पढ़ता है। व्हाट इज द डिफरेंस? 8 में जब पढ़ता है तो टॉपिक का नाम होता है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ, लेकिन जब क्लास 9 में आ जाता है इट बिकम्स द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टॉपिक? क्यों ये दो टॉपिक रखे गए? एक ही टॉपिक को सेम क्यों नहीं चिपकाया गया यहाँ पे? एक ही सेल पढ़ना है क्लास 8 में भी, 9 में भी पढ़ना है, लेकिन टॉपिक के नेम चेंज है। क्लास 8 में अगर आपको याद होगा तो द नेम इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। 9 में आता है फंडामेंटल यूनिट। व्हाई? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू वर्ड्स? 2 सेंटेंसेस के बीच में क्या अंतर है? योर गोल? This we are talking about the cell, and we are talking in that sense कि cell how it is connected to the life. क्लास 8 में जब हम सेल पढ़ते हैं तो केवल सेल के बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, लेकिन जब क्लास 9 में जाते हैं तो वहाँ पर सेल डिवीजन भी पढ़ते हैं। सेल के अंदर का जो उसका जो इंटरनल जो पार्ट्स है उसके ऑर्गन्स के बारे में भी पढ़ते हैं, डिटेल में पढ़ते हैं। क्रोमोसोम्स डिटेल्स, हाँ, उसके क्रोमोसोम भी पढ़ते हैं, माइटोसिस भी पढ़ते हैं, माइटोसिस सेल डिवीजन भी पढ़ते हैं, तो वहाँ सारा चीज डिटेल में पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ केवल इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। यस, बिल्कुल सही सर। दैट मीन्स वी आर यूजिंग प्रोवाइडिंग द स्टूडेंट्स Simple to complex। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जा रहे हैं, इंस्टॉलमेंट पे जा रहे हैं। एक लेवल पे क्लास 8 पे हमने उसको इंट्रोड्यूस किया कि सेल एक बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है, पूरे ऑर्गेनिज्म का बॉडी उससे बना रहेगा, काम भी उसी में होगा, ऑल द प्रोसेसेस आर कैरीड आउट विद इन द सेल। लेकिन जब आप क्लास 9 में आते हैं यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स cannot be imagined without a cell, either it is the prokaryotic or eukaryotic whatever। तो यहाँ पे आप उसके एक्सपीरियंस को यूज कर रहे हैं, इनहैंस कर रहे हैं, प्रायर नॉलेज को और ज्यादा लिटिल बिट मोटिवेट करते हैं, मूव करते हैं, मूव फॉरवर्ड करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। सो द एक्सपीरियंस एंड लर्निंग प्रोसेस के प्रॉस एंड कॉन्स क्या है? अलाउ फॉर मोर क्रिएटिविटी, ज्यादा क्रिएटिव होते हैं वो, ज्यादा कुछ नया सोचना शुरू करते हैं। हेल्प यू स्टैब्लिश इंपॉर्टेंट कॉन्टैक्ट्स, जब वो एक्सपीरियंशियल लर्निंग अपने एक्सपीरियंसेस को यूज करता है तो उसके कॉन्टैक्ट्स बढ़ते हैं, आपस में उनके रिलेशन, पर्सनल रिलेशंस बेहतर होते हैं। प्रोवाइड रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंसेस, हम बात वही, साइंस इज द डे टू डे लाइफ। साइंस कोई किताब नहीं है, साइंस हमारी जिंदगी है, और अगर ये हमारी जिंदगी है तो हमें अपनी जिंदगी के हर एक होने वाली घटनाओं को समझना है, दैट इज द साइंस। और इसलिए यहाँ वो रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस है। फ्यूज वायर, अभी क्लास 7 में जो हम लोग लास्ट चैप्टर पढ़ा रहे थे दैट वाज द इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट। तो बच्चा मैम हम लोग घर का फ्यूज बना सकते हैं? क्यों नहीं बना सकते हैं? मैंने बताया कि जब हम लोग पढ़े थे तो फ्यूज वायर घर में आके बनाना सीखा, आज एमसीबी है। तो मैडम आज तार में तो तार नहीं है, तो आज का ये एमसीबी नीचे कैसे आया? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट बताया हमने उन्हें। तो ये क्या है? ये उसका डे टू डे लाइफ है, वो अपने घर की चीजों से रिलेट होना शुरू करता है, देखना शुरू करता है, जो पढ़ा था हाँ ये ऐसे काम किया, ऐसे काम किया, ऐसे काम किया। रोल ऑफ एक्सपीरियंस गेट इंक्रीज, मेक यू मोर प्रिपेयर्ड फॉर द एडल्ट लाइफ, आगे के जीवन के लिए आपको तैयार करता है। द नेक्स्ट मेथड आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग। क्वेश्चन, क्लास में आई, चप्पल फिसलने लगा मेरा, मतलब मैम ठीक से बोले अरे देखो चप्पल मेरा क्यों फिसला? तो मैम चप्पल ना आपका पुराना हो गया होगा, उससे क्या हुआ? फ्रिक्शन। ट्रॉली क्यों ज़्यादा बेहतर है?
पहले का पुराना वाला वीआईपी की तुलना में। रोलिंग फ्रिक्शन, बॉल बियरिंग्स, गोली निकाल के, हमको याद है बचपन में हम लोग मैकेनिक की दुकान घर के बगल में थी, तो उसके यहाँ से वो बॉल बियरिंग्स के जो रोलर्स थे वो निकाल के उसे खेलते थे। एक्सपीरियंस, वट एवर वी हैव नोन, वी हैव लर्न बाई आवर डेली लाइफ। तो यहाँ पे इंक्वायरी बेस्ड क्वेश्चन शुरू ही होता है क्वेश्चन से। इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग इज एन अप्रोच टू टीचिंग एंड लर्निंग दैट प्लेसेस स्टूडेंट्स क्वेश्चंस। बच्चा के क्वेश्चन पूछता है आपसे, आइडियाज एंड ऑब्जर्वेशंस एट द सेंटर ऑफ द लर्निंग एक्सपीरियंस। मैम रेनबो कहाँ से देखें? अभी तो नहीं दिखाई दे रहा है। घर में एलईडी है टीवी जी? यस मैम। तो वहाँ स्प्लिटिंग ऑफ लाइट हमारे स्क्रीन पे नहीं दिखता है? ऐसे बहुत से एयर बबल्स बन जाते हैं, जब भी सोप बबल्स, उसमें भी हमें स्प्लिटिंग ऑफ लाइट दिखती है। वाटर ड्रॉपलेट्स डाल दीजिए तो इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग स्टार्ट्स विद द क्वेश्चन। क्लास 8 में सेक्स डिटरमिनेशन का एक्स और एक्स वाई, तो एक स्टूडेंट का क्वेश्चन आया कि मैम थर्ड जेंडर में क्या वो हमेशा पूछते हैं, वो टर्नर्स एंड क्लिनफेल्टर सिंड्रोम हो जाता है ना, वो ऑलरेडी 12 में है, वो 12 में है। पांडे सर थोड़ा घुमाइए उधर। नहीं, आप जो क्वेश्चन पूछ रही हैं मैम, बैठ जाइए। ये हम तो वेट करते हैं कि बच्चे पूछे हमसे, क्योंकि हमें बताने को इतनी सारी चीजें होती है कि हम चाहते हैं कि वो चीजों को देखें, उनके देखने का नजरिया बदल जाए। वो जिस रिप्रोडक्शन को इतना एक्साइटेड होकर पढ़ना चाहता है, या जिस एडोलसेंस को लेके वो इतना एक्साइटेड रहता है, उसको बताए कि रियलिटी क्या है। सेक्स डिटर्मिनेशन जब हम लोग पढ़ाते हैं तो उसमें सबसे बच्चे को लास्ट में यही बताते हैं कि देखो, बाबा जी के लड्डू खाने से या किसी बाबा जी के रात में बुलाने से मेल और फीमेल नहीं होगा, ये क्लियर हो गया। और अगर मेल होता है या फीमेल चाइल्ड होती है तो हु इज रिस्पॉन्सिबल। लेकिन जब आप ये बात ऐड करते हैं तो एक टीचर के रूप में रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बढ़ गई। कैसे? कि जब हम लोग ये बताते हैं कि मेल के पास XY सेक्स क्रोमोसोम होता है और जिसके पास Y क्रोमोसोम जाएगा उस बच्चे में वो बच्चा मेल चाइल्ड होगा। तो मैंने कहा हु इज रिस्पॉन्सिबल, क्लास में पूछा, लड़के सर मैम वी आर रिस्पॉन्सिबल। मैंने कहा no one is responsible because it is a completely uncertain and natural process which is controlled by the nature. No one is responsible, क्योंकि जो हम बोलते हैं वो इसके दिमाग में जाता है। तो बात आती है ट्रांसजेंडर्स की। तो ट्रांसजेंडर्स एक ऐसा टॉपिक है जो मुझे लगता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम सभी लोगों की, क्योंकि हम सब लोग जानते हैं कि कैसा बिहेवियर होता है इनके साथ सोसाइटी में। मैं बच्चों को वहाँ से शुरू करती हूँ कि अगर किसी के किडनी में कोई प्रॉब्लम है, हार्ट में तुम्हारे घर में किसी को कोई प्रॉब्लम हो गया, किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ गया, डायबिटीज हो गया, यू आर ओके विथ हिम। आप उसको घर से बाहर नहीं निकालते हो, उसके साथ बैठने में नहीं घबराते हो। लेकिन अगर किसी के बॉडी में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ठीक से नहीं बना, आप उसके साथ बैठना भी स्वीकार नहीं कर सकते हैं। यू आर नॉट एक्सेप्टिंग इन द मेन स्ट्रीम ऑफ द लाइफ, मेन स्ट्रीम ऑफ द सोसाइटी। Madam, they are calling for blessing.